ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਲਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਸਾਰੇ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। Training. Yes, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਫੁੱਲ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ? Yes, ma'am. ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਗਰਲਜ਼ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਐਵਰ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਗਰਲਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ ਵੀ ਗਰਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਬਸ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਨੋ ਮੈਮ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਨਸ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਐਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਹਨਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫੋਰਐਵਰ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬॉयਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗਰਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬॉयਜ਼ ਮੈਚੁਰ ਪਰਸਨ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੋਰਐਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਫਰੀडम ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਰਲਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਐਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ क्लियर हो रहा? अच्छा कोई हिंदी वाला पर्सन है मीटिंग में? हाँ जी हिंदी वाले पर्सन भी हैं मीटिंग में? बीच में मैसेज आ रहे हैं कि मैम हिंदी में करो हाँ ना। तो चलो जैसे मैं बता रही थी थोड़ा सा चलो मैं रिपीट कर देती हूँ कि जैसे मैं बता रही थी है ना। ओके हिंदी वाले पर्सन चलो हैं है ना। तो आप सोच के देखिए हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट है जहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है कि हमने किस पर्सन के साथ काम करना है। ठीक है। तो हाँ जी बेस्ट चीज है या नहीं? हाँ जी साथ में आपने एक्टिव होके रहना है। आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी है मैंने सभी को है ना। Yes, ma'am. हाँ जी मैम। क्या प्राउड फील होता है कि हम एक बेस्ट प्लेटफॉर्म का पार्ट है? Yes, Yes, ma'am. सेकंड yes, ma'am. बीच में कई हंस भी रहे हैं ना अपनी फैमिली तो थोड़ा सा Yes, साइड पे ma'am. बैठ के आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली के बीच बैठे हैं है ना। तो थोड़ा सा साइड पे होके मीन्स अच्छे से आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी है। और हो सके तो आप सभी अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं है ना। तो जल्दी से जितने भी मीन्स गर्ल्स सभी मीटिंग में बैठे हैं तो अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है। तो बाकी सेकंड नंबर पे क्या होता है? अच्छा पेरेंट्स की ओर से प्रॉब्लम आती है सभी को? यस मैम। हाँ जी Yes, ma'am. हाँ जी। सभी को आती है। कौन कौन किस किस गर्ल के पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
सपोर्ट करते हैं या काम करने के लिए रोकते हैं? मना करते हैं? चलो कईयों को जो अभी न्यू होंगे उनको सपोर्ट भी मिल रही होगी, है ना? जिनको अभी थोड़ा टाइम हुआ होगा, है ना? तो जिनको टाइम हो चुका है, जहाँ जो बन चुके हैं चलो, है ना? जहाँ जिनकी जो न्यू स्टार्टअप जिनका होता है, जहाँ जो बन चुके होते हैं, उनको पेरेंट्स की ओर से सपोर्ट मिलती है ना? बट जिनका अभी मीन्स काम स्टार्ट कर लिया, 3-4 मंथ जब हो जाते हैं, तो पेरेंट्स हमें बोलना स्टार्ट कर देते हैं ना? मोस्टली 80 टू 85% गर्ल्स ऐसी ही बैठी होंगी जिनके पेरेंट्स अभी उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, है ना? हाँ जी, आ रही है प्रॉब्लम? यस मैम। तो देखिए, अच्छी बात है अगर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको बोल रही है ना? अगर पीछे से अगर हमारी फैमिली की ओर से थोड़ा-सा प्रेशर होगा तो ही हम काम में कुछ करेंगे, है ना? अगर मान लो हमारी फैमिली हमें ऐसे ही छोड़ दे, हमें कुछ बोले ना, है ना? काम के बारे में पूछे ना, तो फिर हम आगे काम भी नहीं करेंगे, हम उतना सीरियस होके करेंगे भी नहीं, है ना? अच्छा, आप खुद बताइए कि अभी आप सभी मोस्टली अपने घर पे बैठे होंगे, है ना? आप खुद बताइए कि जैसे आपके मदर दिन-रात काम करते हैं ना, आप सोचिए कि वो दिन-रात कितना काम करते हैं, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, है ना? तो आप क्या चाहते हैं आपकी भी लाइफ आने वाले टाइम में वैसी ही हो? नो मैम। हाँ जी, कौन-कौन पर्सन चाहता है? नो मैम। नो मैम। हम सभी चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ अच्छी हो। यस तो सभी चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आज मेहनत करनी पड़ेगी। यस। आप तो बहुत लकी हैं, हम जितने भी गर्ल्स इस सेशन में बैठे हैं, हम इतने के ज्यादा लकी हैं कि हमारा जो मेजर जो टाइम है ना, लाइफ का सबसे जो प्रीशियस टाइम है, उसमें हमें लाइफ का बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया। ठीक है, कल हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी हमें लाइफ में कुछ करने का चांस नहीं मिला, है ना? हमारी फैमिली ने हमें कुछ करने नहीं दिया। तो अगर आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर लिया है, अपना 2cc कर लिया है, इट मीन्स आपकी फैमिली ने आपको आपकी लाइफ में कुछ करने का चांस दे दिया है, ठीक है? अभी आज के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी हमें लाइफ में कुछ करने का चांस नहीं मिला, है ना? क्लियर हो रहा है सभी को? मैम। लाइफ में कुछ करने का चांस मिल चुका है, हमने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल भी कर लिया, तो अभी मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी। तो अगर आप सोचें कि हमारी फैमिली भी हमें कुछ ना बोले, हमें कोई चैलेंज भी ना आए, तो वो चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, मुझे पता है गर्ल्स थोड़ी-सी इमोशनल होती हैं, है ना? जब हमें कोई पर्सन नो बोलता है, ठीक है? जब हमें कोई मेजर चैलेंज आता है, थोड़ा-सा ना हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है? बट इमोशनल वो सारी चीज़ें छोड़ के अभी हमें काम पे प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, कब तक मैनेजर बनने के बारे में सोचा है सभी ने? 13 जुलाई मैम। हाँ जी। अच्छा, ड्रीम बोर्ड बनाया है किसी ने? जितनी भी गर्ल्स मीटिंग में बैठी हैं, ड्रीम बोर्ड किस-किस ने बनाया हुआ है? यस मैम। दिखाएगा कोई पर्सन अपना? यस मैम। हाँ जी, अपना माइक अनम्यूट करके कोई भी पर्सन अपना दिखाएगा? हाँ जी, ड्रीम बोर्ड बना है सभी का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, दिखाओ फिर। म्यूट कर लो जिनके पीछे से ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है ना। अच्छा, हरप्रीत जी दिखा रहे हैं अपना। हाँ जी, हरप्रीत अनम्यूट करके आप दिखा दीजिए। हाँ जी मैम। क्या बात है। 31 कब तक करना है मैनेजर? मैम 31 जनवरी 2026 तक लिखा हुआ है। लगे हुए हैं जोरों शोरों से। ओके, तो चलो बहुत अच्छी बात है। और क्या-क्या लिखा हुआ है? मैम लिखा हुआ है इनविटेशन ऑनलाइन ऑफलाइन डेली, प्लान डेली, फॉलो अप डेली, पर्सनल कोचिंग डेली 5 बजे, मैम नाल पर्सन कनेक्ट करने डेली लिखा हुआ है, ये भी क्लोजिंग भी डेली लिखा हुआ है और डेडलाइन दी है, लगे हुए हैं मैम, और सेट फर्स्ट प्रायोरिटी टू फॉरएवर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ड्रीम्स के साथ-साथ आपने अपना काम भी लिखा हुआ है ना? सारे लेवल भी लिखे हुए हैं। चलो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और कोई है पर्सन? यस मैम, मैं दिखाऊं? हाँ जी, हाँ जी। मेरा ओके, इसमें क्या-क्या लिखा है आपने? मैनेजर की डेट लिखी हुई है मैम,
और मीन्स कितनी डेट लिखी है? 14 अप्रैल। ओके। हाँ जी, और इधर भी लिखा है, ये भी लगाया है। ओके, 2030 तक भी, चलो बहुत अच्छी बात है ना। लॉन्ग टर्म जो हमारे गोल्स होते हैं वो भी सेट किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो, डेली का भी लिखा हुआ है मैम, भी डेली एक रील पोस्ट करनी है और 5 प्लान डेली के करवाने हैं। और क्या क्या है? उधर लिखा हुआ है 10 सीसी डायरेक्ट एवरी मंथ, सुपरवाइजर करवाने हैं टीम में, और कॉलिंग करनी है डेली। ये सारी चीजें। हाँ जी, और कोई है? हाँ जी, और कोई गर्ल है जिन्होंने अपने ऐसे ड्रीम बोर्ड बनाया हुआ है? हाँ जी, कोई भी नहीं है? अच्छा, वैसे सोचा हुआ है कब तक मेजर करना है? हाँ जी मैम, मैं दिखाऊँ? हाँ जी, हाँ जी, दिखाओ। हाँ जी सिमरन। हाँ जी मैम। कि कब तक लिखा है आपने? थर्टी फर्स्ट, ओके। ठीक है, साथ में वर्किंग भी लिखी है। चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो आप सभी आज ही अपने, अच्छा अभी नए साल की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो आज ही आप सभी अपने गोल सेट कीजिए, ठीक है? जो जो भी आपने सोचा है, जितनी डेट तक सोचा है, ठीक है? दिखाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, दिखाइए। बोल के साथ में आप बता भी दीजिए कब तक क्या क्या चीजें आपने लिखी हैं? सुपरवाइजर 25 जनवरी, 30K प्लस चेक, एंड मेरी टीम से करना तो 4 करवाना। ओके, चलो वेरी गुड। आपकी टीम के भी साथ में आपने गोल सेट किए, चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो देखिए, जितनी भी गर्ल्स हैं, आप सभी अपना देखिए लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि हाँ जी कोई बात नहीं, हो जाएगा, है ना। मीन्स मोस्टली हमारे बीच, चलो गर्ल्स मैं देख रही हूँ कि पीजी में भी बैठ के अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि गलती से भी देखिए कोई गलती हमने नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको देखिए काम से साइड पे करने का ना बस एक मौका ही चाहिए। क्लियर हो रहा है? फॉरएवर में क्या है कि सारी गलतियां माफ हो जाती हैं ना, बट प्रॉपर काम पे आपने अपना फोकस रखना है। मैं जो समझाना चाह रही हूँ, समझ रहे हैं सभी पर्सन? कई बार क्या होता है कि काम हम जहाँ पे मैनेजर बनने के लिए आते हैं, सारे गोल हमारे सेट होते हैं, बट डिस्ट्रैक्शन जो होती है ना, इधर उधर जब हम काम करते हैं तो बहुत तरह के पर्सन भी हमें मिलते हैं। हाँ जी, मिलते हैं पर्सन बहुत तरह के। आप लगा लो बहुत तरह के बॉयज हो गए, काफी चीजें ऐसी हो जाती हैं, है ना। तो उन सारी चीजों को साइड पे करके एक बार आपका जो फोकस है वो काम पे होना चाहिए, ठीक है? जब मैं देखिए काम करती थी, इंस्टाग्राम पे हम डीएम करते हैं, बहुत तरह के रिप्लाई आते हैं, ठीक है? आपकी आईडी सभी की मुझे लगता है मोस्टली पब्लिक होगी, तो बहुत तरह के आपको मैसेज भी आएंगे, बहुत सारे पर्सन आपको डायरेक्ट कॉल भी करेंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जो तो पर्सन सीरियस है, जो एक्चुअल में काम करना चाहता है, आपने उसको काम में लेके आना है। जो पर्सन आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस पर्सन को आपने उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारी गर्ल्स बोलती हैं कि मैम हमें पर्सन ने ये बोल दिया, है ना। तो व्हाट्सएप पे आपके पास ना, एक व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आपके पास एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। हाँ जी, कौन सी ऑप्शन है? ब्लॉक करने की। ब्लॉक मैम। ठीक है, मान लो कोई पर्सन आपको बार बार कॉल्स कर रहा है, आपको गलत मैसेज कर रहा है ना। कई बार गर्ल्स स्क्रीनशॉट आगे से आगे कि मैम हमें पर्सन ने ये बोल दिया, तो सिंपैथी लेने की बजाय आपने प्रैक्टिकल होके काम करना है, ठीक है?
क्लियर हो रहा है? तो आपने मीन्स प्रैक्टिकली आपको पता है कि ऐसे मीन्स अगर हम बार-बार जिस टॉपिक को हम खुद मीन्स जिसका सॉल्यूशन हमारे पास प्रॉब्लम का है, उसका सॉल्यूशन हमने खुद ही कर लेना है, ठीक है? अभी आपको पता है कि आपको कोई पर्सन गलत मैसेज कर रहा है, तो देखिए वहाँ पे सिंपैथी लेने की बजाय हमने खुद उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है? अभी आप खुद बताइए, मान लो आप फॉरएवर लर्नर्स का पार्ट ना होते, है ना? मान लो आप कोई स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? आपको बस में किसी पर्सन ने कुछ गलत बोल दिया, तो आप फिर आगे से उस बस में जाना बंद कर देंगे? हाँ जी। आप कॉलेज में मान लो जाते हो, आप स्टडी करते हो, है ना? वहाँ पे आपको किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप कॉलेज जाना बंद कर देंगे? नो मैम। नो मैम। हाँ जी, जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस विलेज में आप रहते हैं, वहाँ पे आपको किसी ने कुछ बोल दिया, है ना? तो फिर आप जाएँगे नहीं घर वापस? तो हम कई बार गलती क्या करते हैं, हम ना ये चीज़ ज़्यादा हाइलाइट कर लेते हैं कि कहीं फॉरएवर की वजह से हमें कोई पर्सन बोल रहा है, ठीक है? तो नॉर्मल लाइफ़ अगर फॉरएवर हमारी लाइफ़ में ना आती, अगर हम कोई और काम करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें ऐसे पर्सन मिलते हैं। क्लियर हो रहा है? हम ना कई बार अपने सीनियर के पास आते हैं, सिंपैथी लेनी स्टार्ट कर देते हैं कि मैम हमें ऐसे पर्सन मिल रहे हैं, है ना? तो कोई चक्कर नहीं है, अगर फॉरएवर ना होती, अगर आप कोई स्टडी कर रहे होते, अगर आप जॉब कर रहे होते, तो सारी लाइफ आपको ऐसे पर्सन मिलते। बट फॉरएवर में आपके पास प्लस पॉइंट क्या है कि आप अपना मैनेजर बनिए, आपका लेवल आप यहाँ तक सेट कर लीजिए कि कोई पर्सन आपको कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचे। ठीक है? हमने ऐसे लोगों की अप्रोच से दूर होना है। ठीक है? अभी मान लो आप अभी बस में जाते हैं, ठीक है? अगर कल को आपने अपनी कार ले ली, तो फिर वहाँ पे आपको कोई पर्सन गलत बोल देगा। आप अपनी कार में बैठे हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको कोई गलत बोल देगा। नो मैम। तो हमने ऐसे लोगों की अप्रोच से दूर होना है, ठीक है? प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन मीन्स प्रॉब्लम पे फोकस करने की बजाय हमने सॉल्यूशन पे फोकस करना है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे पर्सन मिलेंगे, मुझे भी मिलते थे, ठीक है? मुझे अभी भी काफ़ी मैसेज आ जाते हैं, तो मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ। ठीक है? काफ़ी पर्सन आपसे मीन्स अभी मान लो कोई पर्सन आपको पूछ रहा है कि मैम आपने खाना खा लिया? ठीक है? तो आप बताइए कि वो काम के लिए आया है या जस्ट टाइम पास करने के लिए आया है? टाइम पास मैम। ठीक है? कोई पर्सन आपको चलो यहाँ तक सही है कि मैम फैमिली में सभी ठीक है, यहाँ तक सही है। कोई पर्सन पूछ रहा है कि मैम आप सो गए? मैम आपने खाना खा लिया? ठीक है? तो यहाँ पे तो सीधा कॉमन सेंस हमने यूज़ करनी है, ठीक है? तो उस पर्सन को साथ ही साथ ब्लॉक कर दो। उसने ना तो आज काम स्टार्ट करना है, ना वो 1 मंथ बाद करेगा, उसने कभी काम स्टार्ट नहीं करना। क्लियर हो रहा है? ठीक है? जो पर्सन आपको ऐसा लगता है उसको ब्रदर बोल दो। अगर तो काम के लिए आया होगा फिर तो वो अपना मीन्स ठीक है, फिर तो आगे कंटिन्यू रखेगा, अगर नहीं आया तो फिर वो पीछे चला जाएगा। ठीक है? बाकी देखिए गर्ल्स में ना एक सेंस होती है, अगर कोई पर्सन हमें गलत तरीके से हमारे साथ बात करता है, कोई गलत तरीके से टच करता है, तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाले पर्सन क्या सोच रहा है। हमें बात करने के तरीके से, पर्सन की टोन से पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन किस वे में बात कर रहा है, ठीक है? तो हमने उसको यूज़ करना है। अगर आपको थोड़ा-सा भी कॉल पे आपके साथ पर्सन बात कर रहा है, उस वहाँ पे आपको लग रहा है ना कि पर्सन सही तरीके से नहीं बात कर रहा है ना, देखिए हम सभी यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए आए हैं, ठीक है? हम कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत सारे पर्सन हैं, अगर कोई पर्सन आपको सही नहीं लगता, उसको वहीं पे ब्लॉक कीजिए। खुद बताइए, मिलते हैं ऐसे पर्सन? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, फिर आप क्या करते हो? यस मैम। ब्लॉक कर देते मैम। ब्लॉक कर देते हो? ब्लॉक करने में मज़ा तो बहुत आता होगा, है ना? ठीक है? यस मैम। एक तो वैसे थोड़ी-सी आपको पता है फ्रस्ट्रेशन होती है ना? तो जब कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है तो बहुत मज़ा आता है उसको ब्लॉक करने में, ठीक है? तो ये चीज़ है, तो हमने कोई ज़्यादा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, है ना? अगर आपको लगता है सामने वाला पर्सन सही नहीं है तो उसको ब्लॉक कीजिए, ठीक है? और जो गर्ल्स ऑफलाइन काम कर रही हैं ना, तो मीन्स आपने गलती से भी बस ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि काफ़ी बार क्या होता है ऑफ़िस में मान लो कोई बॉय है ना? तो ऑफ़िस तक पहुँच जाते हैं, तो उन चीज़ों का आपने खुद ध्यान रखना है। ऑफ़िस का एनवायरनमेंट अच्छा रखना वो हमारे हाथ में है।
ठीक है? काफ़ी गर्ल्स होती हैं ऑफ़िस में ही ऐसे वीडियो कॉल लगा के बैठी रहती हैं। ठीक है? मैं देखती हूँ सभी नहीं, चलो आपकी पर्सनल लाइफ़ है, आप ऑफ़िस से घर जाइए, आप जो मर्ज़ी कीजिए, ठीक है? बट ऑफ़िस में हमने खुद अच्छा माहौल बना के रखना है, ठीक है? अभी मान लो ऑफ़िस में आप कॉल पे लगे हुए, कॉल कीजिए बट हमने काम के लिए कॉल करनी है, ठीक है? हमारे पेरेंट्स हैं, हमें घर से भेजते हैं, वो कितने ज़्यादा उनकी आप पे उम्मीदें हैं। क्लियर हो रहा है? आपने अपने पेरेंट्स को कितने ज़्यादा ड्रीम दिखाए होंगे, ठीक है? तो अगर वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो उसका हमने मीन्स काम में ग्रो करने के लिए फ़ायदा लेना है, ठीक है? आप बहुत लकी हैं, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। बट अगर आप पे आपके पेरेंट्स का ट्रस्ट है तो ही आपको वो अलाउ कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर हो रहा है? तो हमने उन चीज़ों का सही जगह पे यूज़ करना है। अपने पेरेंट्स को पुश करके दिखाना है, ठीक है? जब आप कुछ बन जाओगे तो आप खुद बताइए कि आपके पेरेंट्स आपकी परमिशन के बिना कुछ करेंगे? नो मैम। हाँ जी। मान लो कल को आपकी मैरिज करनी है, कुछ भी करना है तो आपके पेरेंट्स पहले आपसे पूछेंगे। बट अगर आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं होगी फिर आपके पेरेंट्स आपकी बात सुनेंगे? नो मैम। नहीं है ना, तो लाइफ में हमें कुछ अचीव करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो इधर-उधर वाली चीज़ों पे से ध्यान हटा के प्रॉपर हमें काम पे फ़ोकस करना पड़ेगा। हाँ जी, समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। किसी की यस नहीं आ रही। हाँ जी, समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, देखिए गर्ल्स में मुझे पता है आप सभी गर्ल्स में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर गर्ल्स अपनी लाइफ में सोच लें ना कि हाँ जी, हमने ये करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? हमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, हम मीन्स गर्ल्स अगर कोई अपना सेट कर ले ना कि हाँ जी, ये चीज़ करनी है तो 100% हम वो चीज़ कर देते हैं। चाहे गर्ल्स इमोशनल हो, चाहे जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके हमने वो चीज़ें फेस करी होती हैं। ठीक है? फैमिली में, रिलेटिव्स में वो सारी चीज़ें हमने फेस करी होती हैं, तो हम इमोशनली अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती हैं गर्ल्स, है ना? और पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, अगर हम सोच लें ना कि लाइफ में कुछ करना है, तो हम वो चीज़ करके रहते हैं। बट मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है? डिस्ट्रैक्शन। ठीक है? जो मैंने आपको पहले बताया, बस उन सारी चीज़ों से ध्यान हटा के हमें काम पे फ़ोकस करना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है? बाकी और क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी। बताएँगे सभी? हाँ जी। आप सभी को जो-जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, पर्सन ਜਦੋਂ अपॉइंटमेंट ले लेंदे आ फिर ऑफिस तक नहीं पहुंचते। अच्छा, चलो ये ना इसके लिए हम अलग से ट्रेनिंग करेंगे, गर्ल्स के लिए स्पेशल जो ये ट्रेनिंग है ना? अगर कोई भी आपको वैसी प्रॉब्लम आ रही है जो आप अपने बॉयज़ अपलाइन से शेयर नहीं कर सकते, जहाँ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है ना? स्पेशली गर्ल्स के लिए सेशन है, तो उस तरह की आप कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैम समटाइम पेरेंट्स ऑफिस नहीं आने देते हैं। ओके। तो आप ना मोस्टली मैं देखती हूँ बहुत सारी गर्ल्स अपना घर पे बैठ के ऑनलाइन भी काम करती हैं, अभी भी मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे आप, है ना? तो हमारे ना पेरेंट्स को ये चीज़ होती है कि आप फ़ोन पे लगे हुए हो, ठीक है? अभी मान लो आप खुद भी सोचिए, मान लो आपके रिश्तेदारी में कोई गर्ल है, ठीक है? वो ऐसे फ़ोन पे लगी हुई है, कॉल पे बात कर रही है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? फ़ोन पे लगी मैम। हाँ जी? आपके माइंड में भी एक गलत मैसेज आएगा ना? बट वही अगर आप अपनी वीडियो ऑन करके आप अपना डायरी पेन लेके बैठे हैं तो क्या आएगा? तो माइंड में आएगा कि हाँ ये पर्सन है प्रॉपर अपना काम कर रहा है, ठीक है? तो होता क्या है कि हम घर पे काम करते हैं, हम ना ऐसे फोन पे लगे होते हैं, ना हमारे पास कोई डायरी होती है ना पेन होता है, ठीक है? मीटिंग्स चलती है, हम अपनी वीडियो ऑन करके ऑफ करके बैठे होते हैं, तो मेनली हमारी फैमिली के माइंड में ये चीज मैसेज आता है, ठीक है? वो अपनी जगह पे सही है,
क्योंकि जिस एरिया में हम रह रहे हैं, ठीक है, लोगों की मेंटालिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी फैमिली की बात करें, जितना मर्जी अपडेट हो जाए, बट ये चीजें हर एक पेरेंट्स के माइंड में आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। आप कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, आपका डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। कोई मीटिंग चल रही है, आपने प्रॉपर अपना सेटअप करके रखना है, अपना टेबल चेयर लगा के प्रॉपर आपने अपना वीडियो ऑन करके वो मीटिंग अटेंड करनी है। हाँ जी, समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। और एक चीज का और ध्यान रखना है ना, आपके अभी हमारी टीम में बहुत सारी गर्ल्स हैं, है ना, तो आपने अपने गर्ल्स अपलाइन को, किसी भी अपलाइन को अपनी फैमिली के साथ मिलवाना है। अभी मान लो फोन पे हम, आपका कोई बॉय अपलाइन है, आप उस 24 घंटे सर 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 करते जा रहे हैं, है ना, तो फैमिली के माइंड में डाउट आएगा। या तो आप जो भी आपके बॉय अपलाइन है उनको ऑफिस में मिलवाइए, है ना, या फिर कोई भी गर्ल्स अपलाइन है उनके साथ आपने अपनी फैमिली को जरूर मिलवाना है। क्लियर हो रहा है? जितनी भी गर्ल्स मीटिंग में बैठी हैं, है ना। अच्छा, किन किन के पेरेंट्स मिल चुके हैं अपने मेजर? मैम मेरे पेरेंट्स मिल चुके हैं। यस मैम, मिल चुकी। अच्छा, आप खुद बताइए, पेरेंट्स से मिलने के बाद जब वो किसी भी सीनियर को मिलके जाते हैं, वो उनका वो चेंज हो जाता है ना थोड़ा सा नजरिया काम पे रखने का। फिर वो खुद आपको बोलते हैं ना काम करने के लिए। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि ट्राई कीजिए, आप अपने पेरेंट्स को फैमिली में से चाहे एक फैमिली मेंबर को जरूर आप ऑफिस ले आके मिलवाइए। अगर ऑफिस नहीं आ सकते तो जूम पे मिलवा सकते हैं, कॉल पे मिलवा सकते हैं। क्लियर हो रहा है? जब आप अपने पेरेंट्स को ऑफिस में लाके मिलवाते हैं तो उसके साथ बहुत ज्यादा मीन्स अच्छे से उनको क्लैरिटी हो जाती है। अभी पूजा मैम है ना, तो आप पूछे, स्टार्टिंग में मैं खुद इनके साथ काम करवाने गई थी, है ना, इनके पेरेंट्स मुझे मिले, फिर उन्होंने इनको पटियाला में भेजा, है ना, तो आज देखिए कितना ज्यादा अच्छे से ग्रो कर चुके हैं, ठीक है। तो कई बार पेरेंट्स के मिलवाने से बहुत अच्छा, भी मेरी फैमिली है वो मीन्स जो मेरे सीनियर है उनको अच्छे से जानती है। जब मैं एएस लेवल पे थी, स्टार्टिंग में ही मैंने अपनी फैमिली को अपने मीन्स सीनियर है, गगन सर हो गए, कुंवर सर, उनके उनके साथ मिलवा दिया था, है ना। तो तब से फैमिली ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, क्लियर हो रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो ऑफिस में जो अच्छा, ऑफलाइन वाले कितने गर्ल्स हैं? जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं वो ऑफलाइन का मैसेज कर दें, जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो ऑनलाइन का। हाँ जी, ओके। ऑनलाइन में भी काफी है, 50-50 है ना, ऑफलाइन भी काफी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि कई बार ना मीन्स जैसे लेडीज में, गर्ल्स में ये चीजें प्रॉब्लम होती है ना कि हमारा ना इधर उधर की चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है। उसने क्या कर दिया, हम ना इधर उधर की बातों में थोड़ा सा ज्यादा कई बार इंटरेस्ट हो जाता है ना। अभी बॉयज का थोड़ा सा इन चीजों पे कम ध्यान होता है, बट गर्ल्स को होता है कि थोड़ा सा सस्पेंस जो किसी बात में होता है ना, हमें ये होता है कि ये बात हमें पता चल जाए, तो ये चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी, हमें बिजनेस माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं जब ऑफलाइन काम करती थी, है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कौन क्या कैसे किसका हो रहा है ना। मुझे ये था कि यार मुझे अपनी फैमिली की ओर से बस मुझे इतना टाइम मिला है, तो इतने टाइम में मैंने अपना मैनेजर करना ही करना है। मुझे नहीं पता था दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। पुराना जो फ्रेंड सर्कल था सारा कुछ छोड़ के मेरा पूरा ध्यान काम पे हो गया था। अभी मान लो मैं अपनी पुरानी फ्रेंड से 2-2 घंटे लगा के पूछती रहती, है ना, रिश्तेदारों से बातें करती रहती, वहां पे क्या हो गया, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। मेरा प्रॉपर काम पे ध्यान था। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि सारी चीजें इधर उधर की बातें छोड़ के, ईगो जेलसी जो भी चीजें होती है ना, मोस्टली लोग बोलते हैं कि गर्ल्स में ये चीजें होती हैं, तो हमने एक एग्जाम्पल सेट करनी है, हमने बिजनेस माइंडसेट अपना बना के रखना है, ठीक है। हमने जो जिन गर्ल्स की लोग एग्जाम्पल देते हैं ना कि गर्ल्स में ऐसे जेलसी होती है, ये होता है, तो हमने उन चीजों के लिए अपने आप की एग्जाम्पल सेट करनी है, ठीक है। क्लियर हो रहा है?
मैं आप इकट्ठे काम कर रहे हैं, आप में ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स आपकी टीम में गर्ल्स हैं, आपकी अपलाइन गर्ल्स हैं, तो आपने सभी के साथ अच्छे से बना के रखनी है। अपने सीनियर आपकी टीम के साथ, आपकी टीम में गर्ल्स हैं, है ना, आपका अच्छे से रिलेशन होना चाहिए उनके साथ। एज अ सिस्टर हमारा ऐसा रिलेशन होना चाहिए। यस ठीक है। मैम। जितना ज्यादा गर्ल्स की यूनिटी होगी ना, आप सोच के देखिए आप कितना आगे तक ग्रो कर सकती हैं। ठीक है। किसी भी बात का माइंड नहीं करना कि यार मेरे तो अपलाइन गर्ल है ना, तो इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों हो गया। ये चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी। चाहे कोई गर्ल आपकी फ्रेंड भी है, आपकी अपलाइन है, उसकी भी बात आपको सुननी पड़ेगी। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। गर्ल्स छोड़िए, मेरी टीम में बॉयज हैं, करण हो गए, कोमल हो गए, मैं उनको बोल देती हूँ, मैं उनका सीधा बोल देती हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल भी माइंड नहीं करते। तो हमने ये चीजें छोड़ के अपने मीन्स प्रॉपर हमें ये चीजें सुननी पड़ेंगी। ठीक है। आपकी कोई भी अपलाइन है, चाहे बॉय अपलाइन है, चाहे गर्ल अपलाइन है, तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। ओके मैम। यस मैम। पापा की परी बन के काम नहीं करना। ठीक है। बिजनेस वुमन हमने बनना है। यस मैम। ऐसा नहीं है पापा की परी के मेरे तो पापा ने आज तक मुझे कुछ नहीं बोला, मैं तो किसी की सुनती हूँ। ठीक है। ये चीजें जो स्टार्टिंग से हमारे माइंड में डाली गई है ना, इनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर हमने बनाना। ठीक है। यस। अगर मीज ऐसा नहीं है कि हमने अपनी थोड़ी सी काफी गर्ल्स को थोड़ा सा क्यूट सा बनने का चक्कर होता है ना, तो वो टोन भी हमें अपनी सही करनी पड़ेगी। थोड़ा सा गट्स के साथ हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक है। सामने वाला पर्सन है, उसको हमने अपने आप को बच्चा सा शो नहीं करना। मेच्योरिटी और सामने वाले पर्सन के साथ बात करनी है। ठीक है। कुछ गर्ल्स में देखती हूँ 18-20 साल की गर्ल्स हैं, इतनी ज्यादा उनमें मेच्योरिटी है। ठीक है। तो ऐसे हमने मीज मेच्योर बन के, चाहे आपकी एज कम ही है, बट हमने अभी अपने अंदर एक मेच्योरिटी लेवल हमारा अप होना चाहिए। बातें वही नहीं, वो छोटी छोटी बातें है ना, हमने मीज वही बातें, उन सारी चीजों से निकलना पड़ेगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। समझ आ रहा है सभी को। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी आप सभी, मुझे पता है आप सभी के ड्रीम बहुत बड़े हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तभी आप इस बिजनेस में आई हैं, तभी आप आज इस मीटिंग में बैठी हैं ना, कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं। क्योंकि हर एक गर्ल को होता है कि मुझे आने वाले टाइम पे किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, है ना। बहुत सारी हाउस वाइफ भी बैठी होंगी मीटिंग में। आपको खुद बताइए कि अगर आप अपने हस्बैंड से 500 भी लेते हैं, उसका भी हिसाब देना पड़ता है या नहीं। हाँ जी। कभी कभी देना पड़ता है, कभी कभी नहीं देना तो पड़ता। हाउस वाइफ बैठी है मीटिंग में, है ना, अगर आप अपनी फैमिली से पैसे, चाहे गर्ल्स चाहे कोई भी है, चाहे बॉय भी है, हर एक पर्सन को बताना पड़ता है कि ये पैसे यहाँ यहाँ पे यूज हुए। बट अगर आपकी खुद की इनकम है, फिर आपको किसी को बताना पड़ेगा। नो मैम। तो मैं कल को मान लो आपकी मीज मैरिज होती है, आपकी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी वहां पे। ठीक है। आपके रिश्तेदार हैं, आप अपनी कार लेंगे, आपकी कितनी ज्यादा वहां पे रिस्पेक्ट होगी। क्लियर हो रहा है। यस। तो हमने एक अपनी फैमिली में एक एग्जांपल सेट करनी है कि गर्ल्स भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हैं। अभी मैं जिस विलेज में रहती हूँ, आप लगा लो कि नियर कोई ऐसा बहुत कम गर्ल्स हैं जो अपनी लाइफ में इतना, मीन्स जो गर्ल्स ग्रो कर चुकी है ना, मोस्टली फॉरेन वाले गर्ल्स हैं। इंडिया में रह के बहुत कम गर्ल्स, मुझे नहीं लगता मेरे विलेज में कोई गर्ल ऐसी होगी जो इंडिया में रह के इतनी अच्छी इनकम ले रही होगी। तो हमने वो गर्ल बनना है। हाँ जी। अकेले अपने एरिया ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੀਜ਼ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਰਲਸ ਬਣਨਾ ਵੀ ਮੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਮੀਨਸ ਦਵੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਰਗੇ ਬਣੋ। ਜਿਵੇਂ अपने फैमिली में मोस्टली चलता है ना कि हाँ जी उनके बेटे ने ऐसा कर दिया, उनकी बेटी ने ऐसा कर दिया। हमारे पेरेंट्स लोगों की एग्जाम्पल देते होंगे ना अभी आपको, तो हमने वो एग्जाम्पल बनना है कि लोग आपकी एग्जाम्पल दें। हाँ जी, बनना है एग्जाम्पल। यस मैम। वो आपकी एग्जाम्पल दें कि हाँ जी उनकी लड़की ने ये कर दिया, उनकी लड़की ने वो कर दिया, तो उसके जैसे बनो। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना, तो घर वाले एग्जाम्पल देते थे कि उनके बच्चों को देखो वो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आज मुझे पता है कि आज लोग मेरी एग्जाम्पल दे रहे होंगे। क्लियर है? तो करना है कुछ बड़ा। बनना है एग्जाम्पल। तो उसके लिए आज फुल मेहनत लगेगी। अगर किसी की नो सुन के रोने लग जाएंगे, ठीक है, फिर लाख रुपया आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। नो हो गया है ना, कोई पर्सन ने किसी को हमें गलत बोल दिया। मुझे पता है काम करते टाइम ना लोग आपको गलत भी बोल सकते हैं कि आप तो लोगों को पागल बनाते हैं, आप तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ठीक है। हमारे काम का जो नेचर है, हमें खुद पर्सन को मीन्स काम के बारे में बताना पड़ता है। तो मीन्स 100 तरह की चीजें होंगी, बट एक टाइम की बात है। एक टाइम आपने अच्छे से मेहनत कर ली, हमने कौन सा सारी लाइफ ही ऐसे लगे रहना है, ठीक है। अभी आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं, आपको इनविटेशन करने आप जाते होंगे, है ना। तो सारी लाइफ ही थोड़ी ना हमने ऐसे लगे रहना है, ठीक है। आप ऑफलाइन घर से निकलेंगे, इनविटेशन करेंगे, तब भी आपको ऐसे बॉयज भी मिलेंगे, ठीक है। बट सारी लाइफ नहीं। बस ये साल आप अच्छे से मेहनत कर लो, उसके बाद आपकी कितनी अच्छी लाइफ हो जाएगी। हाँ जी। यस मैम। इस साल के बीच बीच बनना है मैनेजर। यस मैम। अगर तो उसी के साथ उसी लाइफ में आप सेटिस्फाई हैं, फिर तो आप आज अच्छे से मेहनत मत करो, है ना। अगर मदर जैसी लाइफ चाहिए फिर मत मेहनत करो। कई गर्ल्स सोचती हैं कि कोई बात नहीं, आगे जाके कोई फैमिली ने ढूंढ ही लेना है, अच्छा सा लड़का ढूंढ लेंगे, मैरिज हो जाएगी, ठीक है, खर्चे चलते रहेंगे। तो अगर तो ये मेंटेलिटी है, फिर हम मैनेजर बनना डिजर्व ही नहीं करते। अगर आपको लगता है कि खुद इंडिपेंडेंट होना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना, ठीक है, फिर आप यहाँ पे अभी जैसे पूजा मैम है ना, हमेशा मुझे बोलते थे कि मैम मुझे किसी से पैसे मांगने अच्छे नहीं लगते, है ना। मीन्स मैं खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। तो अभी लाइफ में डिपेंड रहने की जरूरत है उनको। नहीं है ना। तो ऐसे ही आप सभी भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ जब हम न्यू काम स्टार्ट किया था, हमारे साथ पीजी में और भी गर्ल्स आई थी, है ना, उन्होंने भी हमारे साथ काम करना स्टार्ट किया था। बट कोई 1 मंथ बाद अपने घर वापस चले गए, कोई 2 मंथ बाद चले गए, है ना। तो हम लगे रहे, तो हम आज आपके सामने हैं, ठीक है। तो कल को लोगों को नेगेटिव करने वाली कैटेगरी में आना है या पॉजिटिव? पॉजिटिव। हमें मार्केट में मिलती है तो बोलते हैं कि हमने भी ये कम काम करके छोड़े हुए हैं। तो या तो फिर किसी के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बन जाओ, है ना। एग्जाम्पल तो सेट होनी है, चाहे एक नेगेटिव वे से हो जाओ कि हाँ जी उनकी लड़की ने स्टार्ट किया था ऐसे ऐसे करके, उसका कुछ नहीं बना, या तो फिर ये वाली एग्जाम्पल बन जाओ, ठीक है। या फिर एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करो कि हाँ जी उनकी लड़की ने काम स्टार्ट किया था, आज वो यहाँ तक पहुंच चुकी है। क्लियर हो रहा है? यस मैम। कल को आप अभी मेरी फैमिली में कुछ भी होता है तो फैमिली ना हर एक चीज पूछ के करती है, मुझे पहले कॉल आ जाती है, ठीक है। घर की तैयारी चल रही है, कोई भी चीज वहां पे करनी है, मुझे सारी पिक्स शेयर कर देते हैं कि इनमें से कौन सी चीजें लगवाएं घर पे। अगर मेरी कोई अचीवमेंट ना होती फिर आज मुझसे पूछते नो मैम। फिर मुझे बोलते कि हाँ तुमने तो पहले वो काम स्टार्ट किया था, वहां पे तो तुम्हारा कुछ बना नहीं, तुम रहने ही दो, है ना। फिर यही बात सुनने को मिलती। मैनेजर बनना हमारे मीज अभी तो बनना ही पड़ेगा, अगर कुछ नहीं बनेगा तो सारी लाइफ सुनना पड़ेगा।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? तो घर में मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई भी चीज़ है, सारी चीज़ों को एक टाइम पे छोड़ के आपको काम पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? आपके पेरेंट्स आपको एक उम्मीद से आपको घर से भेजते हैं, जो गर्ल्स पीजी में रह रही हैं, आप सभी को भी मैं बोलूँगी, है ना? कि पेरेंट्स का आप पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है, तो उसको हमने ब्रेक नहीं करना। ठीक है? Yes, ma'am. मैनेजर बनो, ठीक है? मैनेजर बनने के बाद आपके पेरेंट्स हर एक चीज़ आपसे पूछेंगे। समझ रहे हैं सभी? Yes, अच्छा, ma'am. पीजी में कौन-कौन गर्ल्स रहते हैं, एक बार बताएँगे? अच्छा, पीजी में रह के ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है या घर पे रह के काम अच्छा कहाँ पे होता है? सीरियसली बताओ, हाँ जी, जो पीजी में रह रहे हैं। ठीक है? पीजी में रह के ज़्यादा अच्छा, तो सभी ठीक है, बिल्कुल सारा कुछ छोड़ के जो पर्सन अपने घर से निकल ही गया कि हाँ जी, अभी काम करना है, वो तो बन के जाएगा ही। ठीक है? अगर आप अपने घर से निकल ही गए कि हाँ जी, हमने कुछ करना, तो मैनेजर बनने के बाद ही हमने वापस जाना है। ठीक है? लाइफ में ना एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी लाइफ में ना इतने चैलेंज आते हैं, माइंड में आ जाता है कि यार कुछ बनेगा या नहीं। बट जो पर्सन उस टाइम पे खड़ा रहता है ना, जो पर्सन लगा रहता है, वो बहुत आगे तक जाता है। ठीक है? जब मैं अपना पीजी में रहना स्टार्ट किया था, फैमिली के पीछे से कॉल आनी कि कब तक आना है, कब तक होगा मैनेजर। एक टाइम पे ना फैमिली से बात होनी भी बंद हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं फैमिली की कॉल अटेंड करूंगी तो सबसे पहले पूछेंगे कब तक मैनेजर होगा। ठीक है? तो बात होनी भी बंद हो गई थी। बट उसके बाद मीन्स जब मैं मैनेजर बनी, तो मैंने पीजी में यही मैं सोच के आई थी कि मैनेजर बनने के बाद ही घर जाऊंगी। तो आप लगा लो मई मंथ में मैंने पीजी में रहना स्टार्ट किया था, तो अक्टूबर मंथ में मैं अपने घर वापस गई थी। अगर फॉरेन होते फिर भी तो हम वहां पे मेहनत करते हैं ना। Yes, ma'am. फॉरएवर में गर्ल्स का मैं देखती हूँ कि अगर कोई चैलेंज आ जाए, हम ना फैमिली को खुद ही नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? तो फैमिली को नेगेटिव हम ना थोड़ा सा फैमिली को भी बताना स्टार्ट कर देते हैं कि मम्मी मुझे ना आज ऐसा पर्सन मिला था, मम्मी मुझे ना नो मिल रही है। ठीक है? तो जब मेरे फैमिली मुझसे पूछती थी ना कि कैसा काम हो रहा है, अंदर चाहे जितना मर्जी चैलेंज आ रहे थे, मैं कभी भी उनको नहीं बताती थी। ठीक है? चैलेंज किसको बताने हैं? अपने सीनियर्स को। उनसे उसका सॉल्यूशन लेना है, क्योंकि हमारी फैमिली को थोड़ी ना काम के बारे में पता है। Yes, ma'am. हाँ जी, समझ आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. तो करें कुछ बड़ा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पता लगना चाहिए, हाँ जी, एक गांव से भी उठ के गर्ल्स अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हैं। Yes, ma'am. ठीक है? चाहे आपने 12th कर रखी है, चाहे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे जो भी रखा है, तो आपने अपने एरिया में एक एग्जाम्पल बनना है। तो वो एग्जाम्पल बनने के लिए आज दिन रात एक करके हमें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप काम का बहाना लगा के आप इधर उधर बातें कर रहे हैं, है ना? ठीक है? इधर उधर आपका ध्यान है, तो सारी चीजें एक टाइम पे छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपकी कोई पर्सनल लाइफ भी है, तो एक टाइम पे उसको होल्ड करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? मुझे पता है हम आप सभी की इतनी की एज है ना, हर एक पर्सन की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। बट जो जो हमारी एज है ना, जो टाइम है, ये कभी भी वापस नहीं आएगा। घर वाले आज हमें देख रहे हैं, बट कितना टाइम देखेंगे? अगर कुछ नहीं बना फिर क्या होगा? हाँ जी, फिर क्या करेंगे पेरेंट्स? मैरिज कर देंगे। मैरिज के बाद फिर वही लाइफ, घर के काम, सारी लाइफ यही चीजों के लिए पड़ी है। बट आज हमें काम पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी गर्ल्स आपकी लाइफ में बहुत मैच्योर पर्सन जो भी बोलते हैं ना कि हमें लाइफ में कुछ करने का चांस नहीं मिला, है ना? तो हम ये चीज नहीं बोल सकते कि हमें कोई चांस नहीं मिला। क्लियर है? ठीक है? बाकी और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी, मैम घर पर रह के मतलब कि काम नहीं कर सकते हम।
तो आप फैमिली से बात कर लीजिए ना प्रॉपर, आप अपनी फैमिली से टाइम ले लीजिए कि जब मुझे मीन्स फैमिली डेली डेली पूछती थी ना कि कब तक मैनेजर होगा, तो मैंने उनसे एक बार अपना टाइम ले लिया कि आप बस मुझे 6 मंथ का टाइम दे दो, उसके बाद जो आप बोलेंगे वही मैं करूंगी। आप 1 साल का टाइम ले सकते हैं, है ना। हाँ तो जी मैंने अच्छे से टाइम लेके अपना पीजी में रहना स्टार्ट किया। फिर ऐसा नहीं है कि पीजी में रह के मैंने अपना 1 मिनट भी वेस्ट किया हो। 7 बजे रेडी होके मैं अपने घर से निकल जाती थी। मुझे पता था, मेरी फैमिली ने मुझे टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे पता था कि जल्दी जल्दी मैनेजर बनना है। मेरे माइंड में 24 घंटे बस ये चलता था कि जल्दी 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 बस मीज प्लान करवाने हैं, इनविटेशन करनी है, ये वो, है ना। 24 घंटे माइंड में फॉरएवर चलती थी। क्लियर हो रहा है? हाँ जी मैम। ठीक है। तो बस यही चीज है, काम आपका चल पड़ेगा, ठीक है। काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मेन जो चीज है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं ऑनलाइन में क्या? मैम ऑनलाइन वर्क को कोई सीरियस नहीं लेता। अच्छा ऑनलाइन, अच्छा पूजा मैम आप कैसे आए थे? ऑफलाइन आए थे या ऑनलाइन? हाँ जी, ऑनलाइन हाँ हमारे जी, साथ। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं ऑनलाइन ही आई थी। ओके, हाँ जी। ऑनलाइन में कितने कौन कौन गर्ल्स हैं जो ऑनलाइन में आए थे? हम आए ऑनलाइन थे बट बने ऑफलाइन है। ठीक है, तो ऑनलाइन काम क्यों नहीं चलता? कितने सारे पर्सन है, देखिए सभी के मैसेज आ रहे हैं जो ऑनलाइन में आए थे, है ना। अगर आपकी डीपी अभी ऐसी लगी होगी, है ना, तो छोटी छोटी चीजों का हमने ध्यान रखना है। अभी मान लो आपके फेस पे मास्क लगा है, वो डीपी आपकी लगी है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपकी कोई पोस्ट ही नहीं है। अगर फैमिली नहीं अलाउ करती तो कोई अदर मीन्स आपकी अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। व्हाट्सएप पे अपनी पोस्ट लगा के अच्छी सी, है ना, जो आपकी डीपी है वो अच्छी होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप कौन सा स्टेटस लगा रही हैं? अभी मैम मान लो लगा रहे हैं ऐसे दिल टूटने वाले स्टेटस, तो फिर तो आपको मैसेज आएंगे, ठीक है। तो हम एक पर्सन के लिए एक रास्ता ओपन कर रहे हैं कि हाँ जी अभी मेरा दिल टूट चुका है, ठीक है। तो फिर तो आपको मैसेज करेंगे कि हाँ जी मैम को तो अभी जरूरत है ना। फिर तो पर्सन एक हमें हौसला देने आएगा ही, ठीक है। तो ध्यान रखना है कौन सी स्टोरी लगा रहे हैं, कौन सी आपकी पोस्ट कैसी है ना। छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैनेजर बनिए, जो मर्जी अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, बट अभी ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपके स्टेटस से लेके आपकी डीपी होगी, आपकी मीज आप कैसे मीटिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? अभी आप मान लो आपको पर्सन की रात को 10 बजे कॉल आ रही है, आप अटेंड करके बात कर रहे हो, है ना। उसको बोलिए कि हमारी इतने से इतने बजे की टाइमिंग है, ठीक है। आपको ऑनलाइन बैठे हो रात के 12 बजे तक का, फिर तो वो पर्सन देखेगा ही, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। इन सारी चीजों का हमने ध्यान रखना है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को हमने अलग अलग रखना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ भी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करनी स्टार्ट कर दें, है ना। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को हमने अलग अलग रखना है। यस मैम। क्लियर हो रहा है? यस मैम। 2026 चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी मान लो आपकी प्रोफाइल पब्लिक है, कोई पर्सन ने आपकी एक नाले अंधेरा हो गया लोग फिर। हाँ जी, अंधेरा हो गया, बट आप अपना म्यूट कर लीजिए। माइक का थोड़ा सा ध्यान रखना है सभी ने। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? क्या बात कर रहे थे अभी हम? मैम ठीक है। तो आपकी मीन्स काम की टाइमिंग हो गई, मीन्स छोटी छोटी चीजों का आपने खुद ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? आपके पेरेंट्स को मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बस एक चांस चाहिए कि आपको आपका काम
ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੀ ਆ। हर एक बात को हमने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अगर मैं आज आपको बोल रही हूँ, है ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारी गर्ल्स को मैंने देखा है जो मीन्स घर पे कोई ऐसी बात हो जाती है, बाद में फिर उनकी सारी लाइफ, उनके घर वाले बस जल्दी जल्दी उनकी मैरिज कर देते हैं, फिर सारी लाइफ ही ऐसे निकल जाती है। ठीक है, यस मैम। कल को आप अभी आप घर से निकलते हैं, ऑफिस आते हैं, लोग आपको वॉच कर रहे हैं कि हाँ जी इनकी लड़की कहाँ पे जा रही है, वो आपको देख रहे हैं कि कब आपका कुछ बनेगा। कल को सारी लाइफ आपके पेरेंट्स को आपको कुछ सुनने को मिले, उससे बेटर है कि आज आप प्रॉपर अपना काम पे ध्यान लगा दो। ठीक है, थोड़ा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮ ਜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ खुद इमोशंस वगैरह साइड ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। प्रॉपर प्रैक्टिकल होके काम कीजिए। ठीक है, यस मैम। हाँ जी, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, फैमिली हो गया, रिलेटिव हो गए, बोलते रहेंगे, कोई चक्कर नहीं है। मैम 2CC ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ज्वाइन नहीं करता, बाद कॉल ही नहीं पिक करते। ये तो कोई बात नहीं है, यस एंड वो ट्रेनिंग अलग से करेंगे, मैं गर्ल्स वाली प्रॉब्लम्स पूछ रही हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि फैमिली हो गई, रिलेटिव्स हो गए, ये सभी पर्सन आपको बोलते रहेंगे जब तक आपकी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। यस मैम। ठीक है, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको इमोशनल भी कर सकते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे, है ना, कि तुम्हारा फॉरेन का बना देते हैं, कोई बात नहीं, है ना। मेरे मदर मुझे इमोशनल करते थे कि तुम्हारा इतना का फेस निकल गया। ठीक है, मेरा फेस इन्ना क हो गया सी जदों मैं मीनस मेरा असिस्टेंट मैनेजर लैवल होया ना, तो मेरे सैल डाउन हो गए सी। देखो, भगवान ना आपको उस टाइम पे परखता है जब आपने आपने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है। ठीक है, तो जिस मंथ मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल होना था, मेरे सेल डाउन हो गए थे और मेरा इतना का फेस निकल आया था। तो फैमिली, मुझे पेरेंट्स कितना ज्यादा इमोशनल करते थे। मुझे फैमिली से फोन आता था कि तुम्हारा फॉरेन का बनवा देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, वैसे। अगर मैं उनकी बातों में आ जाती, फिर आज 1.5-2 लाख इनकम आ रही होती। नो मैम। आज मुझे इतना ज्यादा, मुझे पता है गर्ल्स को ना, गर्ल्स बॉयज से भी ज्यादा अपने पेरेंट्स की टेंशन लेती हैं कि यार हमारे गर्ल्स ना ज्यादा इमोशनल होती हैं, तो हमें बॉयज से भी ज्यादा होता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए, हम अपने फादर के लिए, अपनी मदर के लिए कुछ करें। हाँ जी, होता है ना यार ज्यादा। यस ये होता है कि मैरिज से पहले पहले जितना ज्यादा हो सकता है उतना हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करके जाएं। तो इससे ज्यादा बेस्ट और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, अभी मैं अपनी फैमिली को घर बना के दे चुकी हूँ, कार लेके दे चुकी हूँ, है ना। फैमिली में कोई बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेती हूँ। ठीक है, तो अगर हमने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है तो आज हमें प्रॉपर काम पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ नहीं बनेगा, फैमिली 1 साल देखेगी, 2 साल देखेगी, है ना, उसके बाद मैरिज हो जाएगी, फिर वही घर के काम। तो आज प्रॉपर काम पे ध्यान देना पड़ेगा। बार बार मैं आपको यही बात बोल रही हूँ। ठीक है, यस मैम। और हमारे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है, मैं देखती हूँ गर्ल्स में वीकनेस रहती है, हमारी टीम में गर्ल्स है ना, इतनी ज्यादा वीकनेस रहती है। तो आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, नेक्टर इतना अच्छा प्रोडक्ट है ना, तो आप खुद प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। ठीक है, आपको पता है जो मंथली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मीज मान लो कोई, एक सेकेंड, माइक का आपने अपना ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि अगर कोई मीन्स प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, तो उनको हमने कोई भी ड्रिंक नहीं यूज करवानी, और प्रोडक्ट अपने अप्लायंस की को मीन्स से पूछ के, अप्लायंस से पूछ के हमने उस पर्सन को प्रोडक्ट रेकमेंड करने हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई भी प्रोडक्ट आपने यूज कर, एक सेकेंड, आप बार बार माइक मत अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, समझ आ रहा है सभी को? तो आप खुद सभी प्रोडक्ट यूज कीजिए, अपनी फैमिली को प्रोडक्ट यूज करवाइए, है ना। कितने अच्छे अच्छे हमारे प्रोडक्ट हैं, तो उनके हमने खुद भी रिजल्ट लेने हैं। ठीक है, तो अच्छे से दबा के अभी करें मेहनत।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोकस काम पे है प्रॉपर सभी का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इधर उधर तो focus नहीं है ना? Yes, ma'am. पक्का काम पे फोकस? Yes, Yes, ma'am. 100% है. उसके अपलाइन मुझे आके सारी चीजें बता देते हैं कि मैम ये गर्ल ऐसे कर रहे हैं, ये ऑफिस में ऐसे करते हैं, मुझे सभी का पता है, ठीक है? तो जितना ज्यादा काम पे ध्यान होगा उतनी अच्छी बात है, ठीक है? मैं आपको बार बार यही चीज बता रही हूँ कि आप बहुत लकी हैं, आप सभी गर्ल्स बहुत लकी हैं कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप आज इस मीटिंग में बैठे हैं, चाहे आप ऑफलाइन है, अगर आप ऑफलाइन आ रहे हैं ना ऑफिस में, फिर तो आप और भी ज्यादा लकी हैं। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको पीजी में छोड़ रखा है, अगर आप उससे भी ज्यादा लकी हैं कि आपके घर वाले आप पे इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो उस ट्रस्ट को बना के रखना है, अच्छे से काम पे ध्यान देना है, ठीक है? कल को कितनी अच्छी लाइफ होगी जब मंथली आपके अकाउंट में इनकम आएगी, है ना? तो सारी लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? Yes, ma'am. आपकी वजह से कल को कितनी सारी गर्ल्स और भी ग्रो करेंगी, कितनी गर्ल्स के लिए एक नया रास्ता ओपन होगा, है ना? ठीक है? तो ये चीज है। Yes, ma'am. अभी गर्ल्स देखिए फॉरेन जाती हैं ना, उनको कोई वहां पे सपोर्ट करने वाला नहीं होता। इमोशनली उनको कितने ज्यादा मेंटली वो डिस्टर्ब होते हैं वहां पे फॉरेन में। आप सभी को पता है कैसा माहौल है, क्या वहां पे चल रहा है, ठीक है? कितने ज्यादा वहां पे चैलेंज आते हैं, बट आपको लगता है वो गर्ल्स अपने पेरेंट्स को बताती होंगी? हमारे तो यहाँ पे कोई ऐसा चैलेंज भी नहीं है ना? मेरे नेबर में एक गर्ल है, वो मुझे कॉल करके ना रोने लग जाते थे कि मीज मुझे ना ऐसे करके यहाँ पे ऐसे ऐसे चैलेंज आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। तो वो लास्ट में मुझे ये चीज बोलती थी कि मेरे फैमिली को मत बताना। तो आप सोच के देखिए आप कितने लकी हैं, आपको यहाँ पे हौसला देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कितने पर्सन आपको यहाँ पे बैठे हैं। एक अपलाइन ने कॉल नहीं अटेंड की, हम दूसरे अपलाइन को कर लेते हैं, तीसरे को कर लेते हैं, है ना? कितनी ज्यादा आपको सपोर्ट मिल रही है। तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको लाइफ में और कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर अभी भी आप अपनी ऑप्शन लेके बैठे हैं ना, कोई बात नहीं फॉरेन चले जाएंगे, वहां पे ऐसे आपको कोई नहीं पूछेगा। अभी भी अगर आप सोच रहे हैं ना कि कोई बात नहीं बन गया, ठीक है, नहीं 10-15 हजार की जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जहाँ पे एक एएस गर्ल को भी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है ना, आप सोच नहीं सकते। किसी और काम में आप बड़ी से बड़ी पोस्ट पे भी चले जाओ ना, तभी भी आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी यहाँ पे आपको एएस लेवल पे मिलती है। एएस लेवल पे हमारे बिजनेस की इतनी पावर है ना कि सामने वाला पर्सन आपको स्टार्टिंग में आके मैम सर बोल के यहाँ पे बात की जाती है। क्लियर हो रहा है? ये मैम सर हो क्यों रही है? क्योंकि ये सारी पावर फॉरएवर में है, ठीक है? तो बस अभी अच्छे से हम मेहनत करें, ठीक है? अच्छे अच्छे पर्सन आपकी टीम में आएंगे, बहुत अच्छा आपका काम चलेगा ना। अभी नए साल की स्टार्टिंग है, तो इसी साल के बीच बीच हम सभी ने मैनेजर करना है, ठीक है? जैसे मैंने कमिटमेंट की थी ना उस टाइम पे इस 6 मंथ में मैनेजर करना ही करना है, तो मेरा हो गया। तो अगर आप आज ही अपनी कमिटमेंट करेंगे तो आपका भी इसी साल में जिस मंथ आपने सोचा होगा ना 100% मैनेजर होगा। हाँ जी, एक दो मंथ आगे पीछे हो जाए वो अलग चीज है, बट अगर आपने सोच लिया है ना, अगर वो आप उस मंथ पे काम करने लग गए हो कि इस मंथ तक करना है, चाहे 2 मंथ लेट हो जाए बट होगा जरूर। मैंने अगस्त मंथ में सोचा था, मेरा अक्टूबर मंथ में हो गया, बट हुआ तो सही ना, क्योंकि मैं उस लगी हुई थी कि हाँ इतने टाइम के बीच बीच करना है, ठीक है? तो अपने पोटेंशियल को पहचानिए, है ना? बहुत कुछ हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, बस पोटेंशियल को पहचान के प्रॉपर उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो हाँ जी, करेंगे सभी। तो आज सभी आप मुझे अपनी डेट बता दीजिए कब तक आपका मैनेजर हो जाएगा। हाँ जी, कब तक हो जाएगा सभी का मैनेजर? सिंपैथी चाहिए या सक्सेस? हाँ जी, सक्सेस चाहिए ना?
तो ऐसे बात बात पे हाँ इमोशन कई बार टेंशन हो जाती है काम की, उस टाइम पे सीनियर के पास आना है, बट ऐसा नहीं है कि 24 घंटे हम बस सिंपथी सी लेते रहें, ठीक है। और गर्ल्स में एक चीज और मैं प्रॉब्लम देखती हूँ कि फोन ना कई बार हम अपना साइलेंट रखते हैं। अभी आपको पता है कि हमारा फोन ही हमारा ऑफिस है, तो फोन को ना आपने रिंग पे रखना है, ठीक है। हाँ 9-10 बजे के बाद रात को कई बार, चलो मुझे पता है कि हम अननोन लोगों से बात करते हैं, कई बार एक अननोन पर्सन रात को भी कॉल करनी स्टार्ट कर देते हैं, तो साथ ही साथ हमने उनको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। रात को चल गया कि हाँ फोन हमने साइलेंट कर लिया, बट आपने मोस्टली अपना फोन रिंग पे रखना है, ठीक है। और सुबह हमने 6-7 बजे से अपना काम स्टार्ट कर देना है, क्लियर है। इधर उधर की बातें छोड़ के, ईगो जेलसी गुस्सा ये सभी चीजें छोड़ के, अभी जैसे स्कूल में होता था ना गर्ल्स में, वो सारी चीजें छोड़ के अभी काम पे ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज और है, गर्ल्स ना कई बार हम डिपेंड रह जाते हैं कि अगर हमारे साथ कोई ऑफिस जाने के लिए होगा तभी हम ऑफिस जाएंगे, अगर हमारे साथ कोई इनविटेशन करने के लिए जाएगा तभी हम इनविटेशन करने के लिए निकलेंगे। तो इंडिपेंडेंट अगर बनना है लाइफ में, तो आज इंडिपेंडेंट होके काम करना पड़ेगा, किसी पे डिपेंड मत रहिए कि हाँ जी अगर वो ऑफिस आ रही है तो मैं आज ऑफिस जाऊंगी, मैं तो अकेली हूँ, मैं तो जाती नहीं हूँ, है ना। एएस लेवल से आप लगा लो मैनेजर लेवल तक, मैंने बठिंडा में पहले रह के काम किया, उसके पहले पटियाले, है ना। तो जब मैं वहां से ट्रेनिंग करने आती थी, कई बार रात के 10 भी बज जाते थे। आप पूछ लीजिए जो पुराने लीडर बैठे हैं अमृतसर में, ऐसे मैंने अकेले आके मीटिंग्स करनी, है ना। ऑफलाइन मीटिंग में टीम के साथ खुद करवाने जाती थी, क्लियर हो रहा है। ऑफलाइन ट्रेनिंग्स मैंने अकेली ने ऐसे करवाने जाना, ऑफिस मैंने खुद अमृतसर तक अकेले आना, है ना, फिर पटियाला जाना, कभी तरन तारण आना, ऐसे जैसे आपको पता है कि स्टार्टिंग से ही हमारे अलग अलग एरियाज में ऑफिस है। तो अगर स्टार्टिंग से मैं ऐसे डिपेंड रहती तो आपको लगता है कि आज मैं मैनेजर होती, ठीक है। जैसे स्कूल में होता है ना कि मैम वॉशरूम जाना है तो इसको साथ में ले जाऊं, वैसा हमने नहीं करना। वो माहौल अभी हमें चेंज करना पड़ेगा, अभी हम बिजनेस वूमन है, ठीक है, लेडी बॉस हम हैं, तो उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। काफी बार मुझे क्योंकि पता चलता है ना कि मैम मेरे साथ को तो कोई इनविटेशन करने के लिए मेरे पास साथ है नहीं, मैं अकेली कैसे जाऊं। अगर आपका फॉरेन का बनता, हाँ जी, आपके साथ कोई जाता है, आप अकेले जाते। अगर आपको कोई जॉब मिलती वहां पे, फिर किसको लेके जाते, वहां पे अकेले नहीं जाना था ना। तो यहाँ पे भी हम अकेले काम कर सकते हैं, कोई इनविटेशन करने जा रहा है नहीं जा रहा, काम कर रहा है नहीं कर रहा, हमने बनना है तो हमें प्रॉपर अपना काम करना पड़ेगा, हमें खुद घर से निकलना पड़ेगा। समझ आ रहा है सभी को। जितना अकेले रह के अच्छा काम होता है ना, मीन्स आप अकेले किसी की और जब देखना बंद कर दें तब हमारी ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। जब हम किसी की और देखते रहते हैं कि हाँ जी वो जितने बजे ऑफिस जाएगी तब मैं जाऊंगी, फिर नहीं। आपको पता है आप मैनेजर बनने आए हैं, आपको पता है आपने इतने टाइम के बीच बीच बनना है, क्या पता जिस पर्सन पे आप डिपेंड बैठे हैं क्या पता उसके ड्रीम ही ना हो, बट आपके तो ड्रीम है ना। तो आपको खुद अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्लियर हो रहा है। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी, बनना है सभी ने मैनेजर। साल के बीच बीच बनना है, 2026 में बनना है ना सभी ने। तो करेंगे फिर सभी मेहनत। टाइम पे फुल मेहनत लगेगी, करेंगे सभी। चैलेंज भी आएंगे, रोना भी पड़ेगा, टेंशन भी होगी काम की, ये चीजें कर लेंगे फेस सभी। मुझे खुद पता है मैं अकेली बैठ के रोई भी हूँ, ठीक है। जब चैलेंज आते थे तो टेंशन होती थी काम की, उधर से घर वाले भी बोलते थे, रिश्तेदार आके बोलते थे कि लड़की का क्या बन रहा है ना। तो ये सारी चीजें फेस करके एक पर्सन अपनी लाइफ में ग्रो करता है, ठीक है।
जितने भी आप बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, किसी की भी आप जर्नी उठा के देख लो, हर एक पर्सन को चैलेंज आते हैं। तो ये सारी चीज़ें फेस करके जब आप कुछ लाइफ में अचीव करोगे तो कितना ज़्यादा सुकून मिलेगा। जब आपका मैनेजर का शैशे, मैनेजर की पिन, मिलीनियर की ट्रॉफी आपके हाथों में आएगी, आपकी कार की चाबी आपके हाथों में आएगी, तब कितना ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। तब वो दिन ना आपको भूल जाएँगे कि अच्छा यार हमने ऐसे-ऐसे करके भी काम किया है। जब आपको आपकी सक्सेस मिलेगी ना, तो ये सारी बातें छोटी हो जाएँगी। आपको लगेगा कि यार बस इतनी की मेहनत थी, इतनी मेहनत करके इतनी सारी चीज़ें मिल गई। फिर आपको ये चीज़ें फ़ील होंगी। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि यार इतनी ज़्यादा मेहनत है, बट जब आप कुछ अचीव कर लोगे ना, उस अचीवमेंट के सामने आपको आपकी मेहनत कम लगनी स्टार्ट हो जाएगी कि यार बस इतनी का मेहनत थी। क्लियर हो रहा है? तो बस अच्छे से अभी दबा के मेहनत करो। सारी चीज़ें छोड़ के आपकी जो पर्सनल लाइफ है ये वो सारी चीज़ें होल्ड करके प्रॉपर बस काम पे लग जाओ, ठीक है? तो फिर इसी साल के बीच-बीच आपका मैनेजर भी होगा, आपकी कार भी आएगी, है ना? आपके पेरेंट्स कितना ज़्यादा प्राउड भी फ़ील करेंगे, ठीक है? तो रेडी है फिर सभी कुछ करने के लिए? तो बाकी आई होप यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? और किसी ने कुछ भी पूछना हो? हाँ जी। और अगर किसी ने कुछ भी पूछना है तो जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है ना। अगर किसी के बॉय अपलाइन है, आप कोई चीज़ उनसे नहीं शेयर कर सकते, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? तो अच्छे से आप सभी करो मेहनत, अपने पोटेंशियल को पहचानो। बहुत कुछ लाइफ में हम कर सकते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत आगे तक जाना है, ठीक है? तो बस उसके लिए भी लग जाओ। तो बाकी मेरी ओर से सभी को ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ तक बहुत सारी चीजें चलो आपको क्लियर हुई होंगी, है ना? तो बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम।